combination of dielectric inside the capacitor. Instead of using one single dielectric, now we are using different dielectric और उनका अलग अलग टाइप के possible combination. For example, first, if it is a series combination of dielectric between the plates of the capacitor, thickness of the capacitor, the plate gap between the plate is D. In this gap, there is not a single dielectric. There are different three dielectrics of first one is suppose having thickness T1, second one is having thickness T2, dielectric constant K2, and third one is thickness T3, dielectric constant K3. K1, K2, K3, and their thickness is T1, T2 and T3. अब इसमें क्या होगा, हम इसको एक साथ अगर कैलकुलेट करना चाहें, we don't have any formula for this case. We have to break them separately into three different capacitors, each filled with only one type of dielectric. तो तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, बट व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन देन? इन तीनों को हम अलग अलग करके सीरीज में अज्यूम करेंगे या पैरेलल में अज्यूम करेंगे? तो उसके लिए जो लॉजिक यूज किया था हमने, इन द सीरीज चार्ज रिमेन सेम, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड. या इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा V, दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. पहले के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरे के क्रॉस है V2, तीसरे के क्रॉस है V3, then this combination will be added. Then these combinations will be added you as per the series combination, because इनके बीच में potential difference is getting divided. अगर potential difference same रहता, then these would have been considered to be in parallel. हमने ये चैप्टर बहुत डिटेल में किया है. Hopefully we will be finishing it today. So you should solve the questions along with this from SL. SL के बीच वाले भी और बैक वाले भी कर सकते हैं आप. And the DPPs that I have shared in the group for the JE purpose. ये कल क्लास में कोई पूछ नहीं रहा था डाउट, इसका मतलब आपने की नहीं है. सो व्योम, आप डाउट क्लास अटेंड नहीं करते? फ्राइडे वाली कल टेस्ट था. यस सर, उस टाइम में मेरी कोचिंग होती है. BMC सर फिट जी. ओके. अच्छा, आज से एपी सर की क्लास सैटरडे भी स्टार्ट हो रही है. एपी सर की क्लास फॉर द रिवीजन एंड बेसिक. सर की क्लास अब रिवीजन के लिए नहीं रही, बाय द वे. सर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं. So now you will be attending sir's class. This is mandatory. Either class directly, or if you are busy at that time, then recording, because I will be using that reference in the next class. और हम थोड़ा quickly start कर सकते हैं competitive level पे या numerical level के questions. So sir's class will be each Tuesday, Thursday and Saturday, 7:30 to 8:30 p.m. So now sir will be starting any topic from the basic level NCERT, and then I will be going in quite a deep for the JEE Mains and advanced level. So उस क्लास को करने से ही आपको complete preparation होगी CBSE plus NTSE part. हाँ, वापस आ जाते हैं. इस क्वेश्चन में क्या हुआ? There are three different capacitors. अब इन तीनों को हम अलग अलग सीरीज में assume कर सकते हैं, and each one is filled completely with only one type of single dielectric. 1/C equivalent T1 आ जाएगा K1 epsilon naught A divided by T1. C2 will be K2 epsilon naught A divided by T2, and C3 will be K3 epsilon naught A divided by T3. So by solving this, we can find out the equivalent capacitance of this capacitor in which three different dielectrics are there.
अब ऐसे क्वेश्चन में वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब. इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब इंस्टेड ऑफ थ्री डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक, अगर हम एक सिंगल डाइइलेक्ट्रिक डालें देन what should be its equivalent dielectric. इन तीनों को हटा के अगर हम एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इफ देर इज ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, then what should be its K equivalent. Equivalent constant हो गया K1 and T1 plus T2 plus T3. So C equivalent we can write K equivalent epsilon naught A and divided by the gap between the plate is T1 plus T2 plus T3. इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 1/c इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे T1 plus T2 plus T3 divided by K equivalent epsilon naught A is equal to T1 divided by K1 epsilon naught A plus T2 divided by K2 epsilon naught A plus T3 divided by K3 epsilon naught A. By using a one single dielectric slab of thickness T1 plus T2 plus T3, equivalent dielectric constant K equivalent, the resultant capacitance is same as these three different dielectrics. So इसको solve करके we get the K equivalent. Epsilon naught A, epsilon naught A, epsilon naught A is gone. The equivalent dielectric constant T1 plus T2 plus T3 divided by T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3. राइट. सो सीरीज में डाइलेक्ट्रिक है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन ईच वन ऑफ देम. इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है और ग्राफ में भी क्वेश्चन आ चुका है इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ. इफ वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हवा में थी E. इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन, दिस हैज इलेक्ट्रिक फील्ड E ओनली. अभी बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने पे द वैल्यू विल चेंज. K1, K2, K3. Suppose it is given that K1 is greater than K2 is greater than K3. डाइलेक्ट्रिक थ्योरी में पढ़ा था हमने, जब हम किसी जगह पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और वो एग्जैक्टली बन जाती है 1/K टाइम्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक becomes E by K1, second dielectric becomes E by K2, third dielectric becomes E by K3. इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में जो थी E वो कम हो गई सिंस K1 इज ग्रेटेस्ट मैक्सिमम इन ऑल थ्री. ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा E by K1, E by K2 and then E by K3. This will be the electric field in these three different dielectric slab according to their dielectric constant value. E by K1, E by K2 and E by K3. Since K1 is maximum, so E by K1 value will be minimum. Right? Second case, instead of series, अगर ये हम three different dielectrics लेते हैं, three different dielectric slab of different area, and then they are connected in parallel.
If suppose the dielectrics are in the parallel combination between the plates of this capacitor, पहला capacitor of area A1, dielectric constant K1. Second area A2, dielectric constant K2. Thickness तो इसका भी हो गया D के equal. And third one is K3, dielectric constant K3 and thickness is D. इसमें कैसे पता कि ये पैरेलल में होंगे? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम मेटेलिक प्लेट्स, और किसी भी मेटल में हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है. So throughout this left plate and everywhere potential is V1. Suppose on the second other side it is V2 everywhere. So the potential difference is V1 minus V2 remains same. इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उसकी गारंटी ये मेटलिक स्लैब्स लेते हैं, बिकॉज मेटल स्लैब के हर एक पॉइंट पे, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे सरफेस पे पोटेंशियल सेम है. दिस इज everywhere V1 and this other plate everywhere V2. V1 minus V2 is same. We can break into three different dielectric field capacitor. Each has only one type of dielectric, but area of the plate will be different now. A1, A2 और तीसरे वाले का था area A3. तो पहले वाले का A1 dielectric constant K1. So there are these three capacitors C1, C2, C3, and since they are connected in parallel, we can calculate C equivalent as C1 plus C2 plus C3. C2 is K2 epsilon naught A2 by D, and C3 is K3 epsilon naught A3 by D. थ्री कैपेसिटर्स को मिला के, थ्री डाइलेक्ट्रिक को मिलाकर हम एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक बना लें, then the equivalent dielectric constant K equivalent again we can calculate by the similar method. तीनों को मिला के एक कर लेंगे तो K equivalent epsilon naught, area will become A1 plus A2 plus A3 and the gap between the plate is still D. तो समझ आ रहा है अनुराग? हाँ जी सर. Okay, so equivalent capacitance formula from here it will be K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3. dd कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय K1 A1 plus K2 A2 plus A1 plus A2 plus A3.
K equivalent of this dielectric combination of the slab is K1A1 plus K2A2 plus K3A3 divided by A1 plus A2 plus A3. इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी सेम होगी? What will be the electric field in these three dielectric slabs? Because the potential difference is kept same by the metallic wires, since it has the same potential difference is same, therefore it will have same electric field, right? Okay, electric field is same, potential will be same. Bharat? Okay, तो ये सीरीज हो गया सिंपल पैरेलल। तीसरा केस आता है जिसमें हम किसी शेप डिफरेंट शेप की स्लैब यूज करें। लेट्स से वन ऑफ द स्लैब इज एल शेप्ड। एल शेप्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ these rectangular blocks. Then what will be the equivalent dielectric constant and what will be the equivalent capacitance? Third is L shaped dielectric. Right. So this is the first dielectric of L shaped having dielectric constant K1. Total distance is D. This will be D by 2. And the area of this right upper half is A by 2. Find the equivalent capacitance. अब L shaped का जो डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको हम दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है वी डिवाइड दिस हॉरिजॉन्टली और वी कैन डिवाइड इट वर्टिकली। मींस ये जो L शेप डाइलेक्ट्रिक है इसके हम क्या हो सकता है, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? सपोज इफ यू ब्रेक इट लाइक दिस, एक बड़ा सा ये K1 का और एक नीचे एक छोटा सा K2 और ऊपर वाला इसके साथ K2 में आ गया। K1 एंड थर्ड वन इज K2। Total distance D, gap this is D by 2, D by 2। अब इसको हम ऐसे अगर अलग अलग करें then it becomes one single capacitor जिसमें केवल K1 भरा हुआ है and there are two capacitors which are considered to be in parallel। एक तरीका तो ऐसा दिख रहा है कि हम ऐसे कोई डिवाइड कर सकते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं K1 and the rest two is K2 and this third one is K1। दूसरा थॉट ये होता है कि हम इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दें। वी कैन हॉरिजॉन्टली ब्रेक इट।
we can break it horizontally. ये ऊपर का K1 नीचे का K1 और जो साइड में आ जाएगा K2. So we can now break it as K1 and K2 half d by 2 in series. राइट अभी हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों में से सही वाला मेथड कौन सा है और why other one is wrong. ये क्या क्या ये तो समझ गए ना शायद. हमने एल शेप को दो पार्ट में डिवाइड करना था. या तो हम वर्टिकली ब्रेक कर सकते हैं या हम हॉरिजॉन्टली ब्रेक कर सकते हैं. एक बार हमने हॉरिजॉन्टली ब्रेक करके देख लिया, एक बार वर्टिकली ब्रेक करके देख लिया. अब भी हम वी हैव टू डिस्कस दैट व्हिच मेथड इज रॉन्ग बिकॉज बोथ डज नॉट गिव द एक्चुअल करेक्ट आंसर. पहला मेथड सही है या दूसरा मेथड सही है? इस एल शेप्ड को ब्रेक करने के लिए, एल शेप्ड वाले डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक करने के लिए व्हिच मेथड इज करेक्ट एंड व्हाई द अदर वन इज रॉन्ग, दैट वी हैव टू टेल. यस एनीवन? पहला मेथड सही है या सेकंड मेथड सही है? बेटा क्वेश्चन तो समझ गया ना क्या पूछ रहा हूँ मैं? यस. एल शेप्ड के डाइलेक्ट्रिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि एल के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, हम उसको ब्रेक करेंगे या तो हॉरिजॉन्टली ब्रेक करें दो ऊपर सीरीज में उसके साथ नीचे वाला पैरेलल में, या वर्टिकली ब्रेक करें एक K1 के साथ K1 K2 दो पैरेलल and they are in series. How do we find that which one is wrong and what is the reason for it? Yes, anyone? Vyom, which one is incorrect and why? सर सोच रहा हूँ. Dishita, anyone else? Which of the two is same? दोनों सो same नहीं है. Which of the two is correct? Both are not same exactly. दोनों की value calculate करोगे, then you will not get the same equivalent. So obviously they are not going to be the same. Their result is not same. This is different. One of them is correct, another one is incorrect. Which one is correct and the other why other one is incorrect? Yes, which one is correct? कुछ तो लगाओ यार दिमाग, बिल्कुल सरेंडर मत करो. Which one is correct, Rudransh? समझ आ रहा है कुछ? नहीं. Which one should be correct and why? अबे भाई कोई बोलेगा नहीं? गलत सही कुछ तो बोलो यार. Yes. चलो सही बताता हूँ मैं. Second one is correct, first one is wrong. You have to give the reason why. पहले वाले मेथड जो हमने ब्रेक किया उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है. What is that? That you have to tell me. तनिष्का और वशी, any idea? कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. पूरा आ रहा है? 50% आ रहा है? सर हमने ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था तो अभी जो आप पढ़ा रहे हो समझ आ रहा है. जो पढ़ा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है. नहीं सर ये आ रहा है लेकिन हमने मतलब बेसिक चीजें नहीं की इस चैप्टर में. ओके ओके ठीक है, बेसिक सर करा देंगे आपको. अभी इसके लिए हिंट ले लेते हैं. हिंट क्या है? पैरेलल में करेक्ट होने के लिए to assume in parallel what should be equal? पैरेलल में क्या इक्वल होता है? पायल which quantity? Potential difference. Potential difference. So is the potential difference same across these two K2 and K1 जो हमने vertical में break करके we consider these two dielectric filled capacitor. Do they have same potential difference? How do we check? उनकी thickness तो same है, d by 2 d by 2.
और पोटेंशियल का फॉर्मूला था E into D. If electric field is same, then potential difference would be same. इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों डाइलेक्ट्रिक में सेम होगी या नहीं? नहीं Is सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम? नो. व्हाई नॉट? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है और ऊपर वाले में होगी 1/k2 टाइम्स. ऊपर वाले डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E/k2, नीचे वाले डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E/k1 और डिस्टेंस दोनों का सेम है, सो ऑब्वियसली देयर पोटेंशियल्स आर नॉट इक्वल. V1 and V2 are not same, so we cannot assume them to be connected in parallel. Again, पैरेलल में हम तभी एज्यूम कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, बट सिंस यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, so potential will also be equal only when the electric field is same. But electric field is not same. एक में E/k1 है, एक में E/k2 है. Hence right? Okay. Hence these two nodes cannot be considered in parallel. This method is wrong. Second वाले को हम सही कर लेते हैं. Second one is correct. ऊपर वाला जो कैपेसिटर है, suppose C1, this is C2 and C3. So we'll consider first C1 and C2 in series. इसमें कोई पंगा नहीं क्योंकि इसके प्लेट पे हर जगह का पोटेंशियल V1 है, हर जगह पोटेंशियल V2 है. Across the combination, series combination of this K1 and K2, the potential difference will be same as potential difference across K1. Sorry, नीचे का जो था that is K1. The thickness of this plate capacitor C1 will be D/2 क्योंकि ये half length थी. इसका area भी हो जाएगा A/2. A/2 and thickness is D/2. This will be A/2 and thickness is D. Now C1 here is K1 epsilon naught A/2 divided by D/2. C2 here is K2 epsilon naught A/2 divided by D/2. And C3 here is K1 epsilon naught A/2 divided by D. And C1, C2 are in series and then C3 is in parallel. सर C3 का एरिया भी A/2 होगा. एरिया भी A/2 होगा, ये तो नीचे का ही ना बस इतना. यहाँ से ऐसे कट कर दिया. सर मगर ऊपर वाले K1 और K2 का K नीचे वाले से छोटा है. अरे टोटल A था ना ये. टोटल इज A. अगर ऊपर का हाफ तो बाकी बचा नीचे का हाफ. सर वो अलग अलग कैपेसिटर का जो सीरीज में है उसका A/4 नहीं होगा. क्यों भाई 4 होगा, तो पूरी प्लेट ही है ना. ऐसे पूरी प्लेट अच्छा ओके सर. A/2 पूरे में भी, इधर से भी A/2. C इक्विवेलेंट है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ऊपर से दोनों सीरीज में आ गए और उसके साथ नीचे वाला आ गया पैरेलल. ठीक है, बाकी C1 C2 इक्विवेलेंट डाल देंगे. अगर हमें K इक्विवेलेंट निकालना होगा तो दोनों को हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे. वन सिंगल डाइलेक्ट्रिक ऑफ K इक्विवेलेंट, then we will find out the equivalent dielectric constant of this combination. इसके अलावा और भी कुछ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं जो जेई में आते हैं, जैसे आ चुके हैं ट्रायंगुलर स्लैब, then with that we have to do the integration.
वो हम फ्राइडे क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। यस, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटर चेंज हो जाता है। बट इफ देयर इज नॉट वन सिंगल डाइलेक्ट्रिक, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, देन we have to break that capacitor into different parts, and then by assuming the combination of those parts, we can find out the equivalent capacitance. We can find the equivalent dielectric constant of that dielectric combination, right? Okay, so हमने combination of capacitor कर लिया, जितने series parallel Wheatstone bridge, and all those type of, and then next is we did the capacitor के अंदर dielectric का combination. नेक्स्ट आते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए थ्योरीज होती है, जैसे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को निकाल दें किसी सर्किट में लगा के, या सर्किट में पहले चार्ज करके फिर उसमें हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, देन व्हाट हैपेंस टू द सर्किट, व्हाट हैपेंस टू द बैटरी, कितना चार्ज बैटरी को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। सो अभी तो पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्विच। अगर किसी सर्किट में स्विच है और उस स्विच को ऑन करने से कितना एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, या उस सर्किट को स्विच ऑन करने का मतलब क्या हुआ सर्किट में, व्हाट आर द टाइप ऑफ कनेक्शंस दैट विल चेंज, application of switch, and then sharing of charge. 2-3 concepts are left in this chapter, and then chapter will be completed. और ज्यादा टाइम हमने दे दिया on the electrostatic. Right. Okay. The next is application of switch. किसी भी सर्किट में, not just here capacitor, हम स्विच लगा के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं when current is passing and when it is not. स्विच सर्किट के कनेक्शन को चेंज कर देता है। जिन दोनों पॉइंट को हम स्विच से कनेक्ट करते हैं, they all are connected. So example के थ्रू लेते हैं। Suppose this is a circuit having C to C in series in one branch. 2C and C is another. इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल जंक्शन है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, but that switch is initially open. इस स्विच को अभी ओपन रखते हैं, देन स्विच इज क्लोज। तो हमें बताना ये है कि स्विच को क्लोज करने पे बैटरी को कितना चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, what is the work done by battery, what is the energy stored by battery, energy stored in the circuit, and how much heat is lost on closing the switch. मानव, Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, डायग्राम? Yes, sir. अगर स्विच ओपन है इसका क्या मतलब है, बीच में कुछ भी नहीं है। Yes, sir. When switch S is open, that means ये जो बीच का वायर, इसको हम assume ना भी करें तो भी चलेगा।
when this switch is open, the upper branch will be C and 2C in series. So switch open होगा तो current कैसे pass करेगा? नहीं करेगा तभी तो हटा दिया उसको. जब स्विच ओपन है तब के उस केस में सर्किट की क्या क्या डायग्राम कंसीडर करेंगे? In this we can calculate how much is the charge given by battery. बेटा सर इस दूसरे वाले डायग्राम पे पास कर रहा है ना करंट. ये पहला डायग्राम ही है जब तक स्विच एस ओपन है ना. अगर एस ओपन है इसका मतलब कि बीच में कुछ है ही नहीं. दिस इज द पाथ इज स्टिल नॉट कंप्लीट. स्विच इज ओपन, स्विच में कुछ कनेक्ट ही नहीं किया बीच में, इट्स स्टिल ओपन, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. सो हम इस सर्किट में बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा वो निकाल लेते हैं. C and 2C become in series, which is 2C and C become in series, become 2C by 3. Both in parallel, so it become C K into B. Four C by 3 is resistance charge E by. स्विच इसको क्लोज कर देंगे तो क्या आ गया, एक बीच में वायर आ गया. ध्रुव Yes, sir. सर ध्रुव Yes, sir. Hello. बेटा आपने रात को क्लास मिस की है शायद. नहीं सर, कल मैंने ज्वाइन करी थी बट थोड़ा लेट कर गई. आपका नाम कर रहा था, फ्रेंड थे वहां पे. लेट ज्वाइन किया होगा. ओके. इसमें जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट बदल जाएगा. कैसे? द कनेक्शन ऑफ सर्किट विल चेंज बिकॉज अगर हमने एस को क्लोज कर दिया इसका मतलब बीच में हमने एक वायर लगा So दिया. यस. so इस पिछले केस में जब switch open है तो वो Q1 कैसे flow कर रहा है? नहीं वो तो सिर्फ इसके क्रॉस नहीं फ्लो करेगा, पी और क्यू के बीच में बैटरी तो करेगी ना. Okay. बैटरी से चार्ज आएगा Q1, वो इधर भी जाएगा Q1 by 2. जब स्विच एस ओपन है मतलब बीच में कुछ भी नहीं लगा है, उसका कोई मतलब नहीं है. देन सर्किट विल बी कंसीडर्ड ओपन ओनली. बट बैटरी के साथ जो सर्किट लगा हुआ है उस सर्किट में तो करंट जा सकती है बिकॉज पाथ इज कंप्लीटेड थ्रू दीज टू लूप्स. एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से. Q is equal to 4 CV by 3. जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया फिर क्या हुआ, so C and 2C in series, but बीच में एक वायर आ गया. जब हम बीच में वायर लगा देंगे तो बीच में एक और कुछ ऐसा सर्किट आ गया. दिस इज C and 2C, 2C and C. कितना आएगा अब इसका C इक्विवेलेंट?
What is the C equivalent of this case? After closing the switch, तो यहाँ पे open circuit था वो complete हो गया. How much is the equivalent capacitance and how much is the charge given by battery in this case now? What is this AC equivalent, Manav? Sir, अभी solve circuit का equivalent C and 2C in parallel, that become 3C, 2C and C in parallel become 3C. So दोनों series में 3C by 2. New charge delivered by the battery C equivalent to V, that is 3CV by 2. What is the extra charge given by battery on closing the switch? 3CV by 2 minus 4CV by 3. स्विच को क्लोज करने की वजह से कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग फाइनल माइनस इनिशियल. एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा फिर ये Q2 minus Q1, that will be 3CV by 2 minus 4CV by 3 और CV by 6. तो स्विच वाले क्वेश्चन में स्विच कनेक्ट करने के बाद हम उस सर्किट में एक नया वायर लगा देंगे स्विच की जगह पे, and that wire will change the overall connection, may change the overall connection of the circuit, right? Yes, sir. सेकेंड अगर हमें ये बताना हो कि इसमें व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी और व्हाट इज द वर्क डन हीट गिवन, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जे लेवल पे एंड कंप्यूटर लेवल पे. स्विच को क्लोज करने पे फाइंड द हीट लॉस, फाइंड द, पहला हमने क्या कैलकुलेट किया ऑन क्लोजिंग द स्विच, एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. On closing the switch, the extra charge provided by the battery comes out CV by 6. On closing the switch, अब हमें ये पता करना है कितना वर्क डन किया होगा, कितनी हीट लॉस होगी बिकॉज ऑफ दिस क्लोजिंग द स्विच. उसके लिए हम पहले इनिशियल एनर्जी स्टोर निकालते हैं. इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर. हाफ सी इक्विवेलेंट था 4C by 3 into V square. इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, बैटरी जब स्विच क्लोज किया तो बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया, चार्ज प्रोवाइड करने से कैपेसिटर के अंदर एनर्जी चेंज हो गई. वी विल नाउ कैलकुलेट द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड. फाइनल एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ C equivalent dash into V square, half 3C by 2 into V square, that becomes 3C by 4V square. So energy system में क्यों बढ़ रही है, because of work done by battery.
लेकिन बैटरी ने जितना वर्क किया अगर वो सारा का सारा एनर्जी में ना जाए, then the remaining will be lost in the form of heat. Heat loss का formula work done by battery minus change in energy. Work done by battery minus change in energy of the system. Final minus initial. वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? स्विच को क्लोज करने की वजह से बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हमेशा V, और इस कांस्टेंट पोटेंशियल के अगेंस्ट बैटरी ने जो चार्ज प्रोवाइड किया है दैट इज CV/6। बैटरी ने इतना एक्स्ट्रा चार्ज डिलीवर किया है CV/6। बैटरी का वर्क डन Q into V माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो आ गया CV²/6। फाइनल एनर्जी इज 3/4 CV² minus 2 CV/3 into whole square. Work done by battery minus increase in the energy. बैटरी ने जो वर्क किया उसका थोड़ा सा पार्ट स्टोर होगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी लॉस्ट। सो CV²/6 माइनस ये आ जाएगा CV²/12 एंड दैट विल बी CV²/12। स्विच को क्लोज करने पे सर्किट चेंज हो गया, सर्किट चेंज हो गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज होने से नया चार्ज चेंज हो गया, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, इंक्रीज इन एनर्जी, एंड वर्क डन बाय बैटरी में से जितना पार्ट स्टोर हुआ उसके अलावा जो भी बचेगा दैट विल बी लॉस्ट। राइट, बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के थ्रू किया क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन मेथड। जब भी हम स्विच क्लोज करेंगे, जहां स्विच करेंगे वहां पे एक वायर आ जाएगा, and through that because of that wire the circuit changes, equivalent capacitance changes, charge changes, therefore energy will change, और energy जितनी बचेगी that amount is lost, work done by battery minus change in energy। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनमें हम स्विच को यूज करते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच। यस, अंडरस्टूड। बेटा समझ में आया कि स्विच का कॉन्सेप्ट क्या था? स्विच को कनेक्ट करने पे देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द सर्किट, सर्किट चेंज हो गया। क्यों? पहले हमने सी और 2C को सीरीज में लेके और फिर दो ब्रांचेस पैरेलल में ली थी। सेकंड केस में सी और 2C को पहले पैरेलल में लेंगे, 3C और फिर 3C को सीरीज में लेंगे, राइट? Yes, sir. Hopefully समझ में आ गया। थर्ड, then the last part of this chapter is sharing of charge between the capacitor, sharing of charge if suppose we have two different capacitor, दोनों को हम अलग अलग सेपरेटली चार्ज करें और फिर बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी को हटा के आपस में कनेक्ट कर दें। पहला कैपेसिटर है C1 that is charged by a battery V1 potential. Second capacitor of capacitance C2 is charged with V2 volt potential battery. जब दोनों आपस में fully charged हो गए, then it is removed from the circuit and connected together.
पहले वाले में चार्ज कितना आया होगा? Q1 is C1 V1, Q2 is C2 V2. The capacitors are charged, fully charged, and then connected together. दोनों कैपेसिटर आपस में चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे so that their final potential become equal. First case, similar plates are connected together or similarly charged plates are connected together. दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स को या दोनों की नेगेटिव प्लेट को, एक तरफ दोनों की पॉजिटिव प्लेट को और एक तरफ दोनों की नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया. पहले वाले की पॉजिटिव प्लेट प्लस Q1 उसको दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट प्लस Q2 से कनेक्ट कर रहे हैं. This is the initial situation. राइट, सो पहले वाले का पोटेंशियल था V1, उसको V1 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया. दूसरे वाले का पोटेंशियल था V2, उसको V2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया. सिंस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, आपस में कनेक्ट करने पे चार्जेस विल मूव so that their final potential will become equal. The charges will move when they are connected by wire till their final potential is equal. इसलिए यहाँ पे Q1 से Q2 या Q2 से Q1 की तरफ चार्ज फ्लो होगा. जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होगा. Assume that final charges are Q1 dash and Q2 dash, and then their final potential is equal. Q1 dash and Q2 dash. Now their final potential is equal. Charges will move till their final potential is equal. अगर फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा. Redistribution of charges between the two capacitors. पहला केस था जब हमने दोनों के पॉजिटिव प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया. Then how does charge will move? Final potential will be equal. जब चार्ज फ्लो स्टॉप होगा that means their potentials are equal. Q1 dash by C1 potential का formula Q2 dash by C2. This is the final common potential when the charge flow stops. Second equation क्या आएगी? Second equation will be that the total sum of the charge of an isolated system. इसको isolated क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बाहर से कोई वायर कनेक्टेड नहीं है. These two plates are connected together only. In this system of isolated system of the plates, initial and final charge on the system must be equal. So by charge conservation, Q1 dash plus Q2 dash is final charge. It should be equal to Q1 plus Q2. Solve for Q1 dash and Q2 dash. राइट, ऊपर वाले से Q1 dash की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ऊपर वाले इक्वेशन से आएगा Q1 dash is C1 by C2 times Q2 dash. C1 by C2 times Q2 dash plus Q2 dash is equal to Q1 plus Q2.
Q2 dash is C2 divided by C1 plus C2 times Q1 plus Q2, which means जो भी total charge था Q1 plus Q2 on the system of both the plates, combined system पे जो total charge था, that total charge gets divided in the ratio of their capacitances, जो कि parallel division में भी था. When charges gets divided, the charge will be equally divided in the two parallel branches. Q2 dash is C2 divided by C1 plus C2 और ये था C1 V1 plus C2 V2. Q1 dash निकालोगे वो आ जाएगा C1 plus C2 C1 upon C1 plus C2 times Q1 plus Q2. So total charge gets divided in the ratio of again their capacitances. C1 upon C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2. ठीक है. So when the plates are connected together, positive plates, दोनों plates में charge आपस में share हो जाएगा and that charge will be shared as per the ratio of their capacitances. जिसका capacitance ज़्यादा है उसमें ज़्यादा charge आएगा. Right? Yes, sir. Second हमें calculate करना होता है final common potential. When the flow of charge stopped because their potential has become equal, common potential or the final potential when the flow of charge stopped. पहले potential था V1 and V2. New potential is say Q1 dash by C1 या Q2 dash by C2, दोनों में से किसी से भी निकाल लेंगे. It will come out Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2 and Q1 is C1 V1 Q2 is C2 V2 C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Right? Yes, sir. Okay. So इसमें जो charge का flow हो रहा है because of the flow of charge, what happens to the energy? एनर्जी लॉस यहाँ पे क्यों होगा? बिकॉज देयर इज फुल फ्लो ऑफ चार्ज. जब भी चार्ज मूव होंगे देयर विल बी सम लॉस. इस केस में कोई बैटरी तो थी नहीं, सो हीट लॉस विल बी जस्ट इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी हो गई हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले कैपेसिटर में, हाफ C2 V2 स्क्वायर दूसरे कैपेसिटर. फाइनली दोनों कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल तो सेम है, so half C1 V square plus half C V2 square. So this will be equal to half C1 V1 square plus C2 V2 square minus C1 plus C2
and V is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 whole square. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बड़ा सा टर्म आ गया कुछ, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर था और ऊपर एक C1 प्लस C2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. हीट लॉस ड्यूरिंग द चार्ज फ्लो, C1 V1 square plus C2 V2 square minus C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This becomes half C1 V1 square plus C2 V2 square times C1 plus C2 minus C1 V1 plus C2 V2 whole square divided by C1 plus C2. थोड़ा लंबा टर्म है बट लास्ट में सॉल्व करके कुछ डिसेंट सा रिजल्ट आ जाता है. 1/2 C1 plus C2 कॉमन, यहाँ मल्टीप्लाई कर लूं, C1 square V1 square plus C1 C2 V2 square plus C1 C2 V1 square plus C2 square V2 square minus C1 square V1 square plus C2 square V2 square plus 2 C1 C2 V1 V2. One upon 2 C1 plus C2, C1 square V1 square C2 square V2 square gone, ऊपर से C1 C2 कॉमन, so V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2 of C1 C2 divided by C1 plus C2 divided into V1 minus V2 whole square. Right? Heat loss is half C1 C2 upon C1 plus C2 times V1 minus V2 whole square. This is the formula for heat loss. जब हम दो अलग अलग कैपेसिटर को पहले V1 से चार्ज करेंगे, एक को V2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे और दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, then there will be sharing of charge and during that sharing of charge there will be heat loss given by this formula. क्वेश्चन में ऐसा भी देता है कि एक कैपेसिटर को चार्ज करें, सेकंड वाले को अनचार्ज, सेकंड वाला न्यूट्रल का अनचार्ज कैपेसिटर. So if it is uncharged capacitor, हम V2 को 0 पुट कर देंगे, Q2 will become 0 for that capacitor. Second situation, ये समझ में आ रहा है कुछ? दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज शेयर होगा in the ratio of their capacitances. जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल से फाइनल एनर्जी आ गई और फाइनल एनर्जी. सो जो डीपीपीज मैंने शेयर किए हैं वो इन पे एक एक कॉन्सेप्ट में एक एक डीपीपी है, शेयरिंग ऑफ चार्ज और इंटरडिस्ट्रीब्यूशन वाले पे. कुछ क्वेश्चंस आप उसके ट्राई करेंगे. Some examples I will take tomorrow in the class also. Potential difference जब भी होता है तब charge move करेगा and charge starts moving, it will collide and during the collision it will lose energy and that energy loss is appearing in the form of heat. तभी हमने वो calculate किया है how much energy will be lost. सेकेंड केस क्या हो सकता है, पहले वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे को रिवर्स कर दे, घुमा दे, दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट कर दें. when oppositely charged plate, when opposite plates are connected together, this case was when both capacitor positive plates are connected together and both capacitor
negative plates are connected together. Second case, when opposite plate are connected together, when opposite plates are connected together. Opposite charge plates, पहले की Q1 दूसरे का minus Q2 if these are now connected together. Out of Q1 and Q2 कोई एक ही वैल्यू बड़ी होगी दूसरे से, but obviously तो या तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा मिलके, या फिर वो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा. Like suppose Q1 is 600, Q2 is 400, तो ये 600 और minus 400 मिलके हो गया plus 200. Q1 and Q2 किसी भी एक की वैल्यू दूसरे से बड़ी होगी, then overall it will become positive, and that positive charge will now be shared between the two capacitors Q1 dash and Q2 dash. After the redistribution, charges are Q1 dash and Q2 dash. अभी Q1 dash और Q2 dash दोनों पॉजिटिव हो गए because जो भी टोटल चार्ज था सिस्टम में, initially it was let's say 600 on the upper plate minus 400 on the lower plate, so 200 होगा और वो 200 डिवाइड हो जाएगा, maybe 50 50 150 या जैसे भी उनका कुछ कैपेसिटेंस का रेशियो होगा अकॉर्डिंगली. दो इक्वेशन, पहले इक्वेशन सेम बनेगी, फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड टुगेदर. चार्ज फ्लो स्टॉप्स ओनली व्हेन दे हैव देयर फाइनल पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल. और दूसरी इक्वेशन आएगी चार्ज कंजर्वेशन की. Final charge on the system is Q1 dash plus Q2 dash, but the initial charge on the system is Q1 minus Q2. सेकेंड इक्वेशन में नेगेटिव चार्ज इसलिए है जो सिस्टम में प्लेट है उसमें ऊपर वाले की पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाले की नेगेटिव प्लेट है. दोनों को अब हम सॉल्व कर लेंगे, then we get Q1 dash. So all the equations, all the terms will be exactly same, only Q1 minus Q2 हो जाएगा ये. This will become Q1 minus Q2. Q2 dash is equal to C2 divided by C1 plus C2. C2 divided by C1 plus C2 times Q1 minus Q2. Q1 dash by C1 is the final common potential. Q2 dash by C2 is the final common potential. Right? So charge का फॉर्मूला सिमिलर है, बस केवल Q1 plus Q2 की जगह पे आ गया Q1 minus Q2. उसका रीजन पहले की पॉजिटिव प्लेट थी. हम इस पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं. कॉमन पोटेंशियल एंड फाइनल एनर्जी. कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा Q1 dash by C1 और Q2 dash by C2. This will become Q1 minus Q2 divided by C1 plus C2. Then when there is a opposite charge plate C1 V1 minus C2 V2 divided by C1 plus C2. And next is the loss of energy or heat loss. Heat loss when these two capacitors are connected together, it will be initial energy minus final energy. Solve करने पे final result में बस जो V2 था वो हो जाएगा V1 minus V2 की जगह पे आ जाएगा V1 plus V2 whole square. Reason being that potential is now negative क्योंकि हमने दूसरे वाले की बैटरी को opposite करके कनेक्ट कर दिया.
तो कैपेसिटर वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ही बचते हैं, क्वेश्चंस फॉर दी सम मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप। डाइलेक्ट्रिक डालने पे कितना चार्ज आएगा, डाइलेक्ट्रिक निकालने पे क्या होगा, सो वो क्वेश्चंस डीपीपी में है। वी विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम डीपीपी इन द टुमारोज क्लास। तो कल फाइनली खत्म होगा कैपेसिटर चैप्टर। अभी हमने थ्योरी वाइज सारा कर लिया है, एनसीईआरटी एचएल अरोड़ा के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हो चुके हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दोस टू बुक्स। डीपीपी के थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रेप डोर पे टेस्ट अपलोडेड है, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट। ठीक है, और जिन लोगों के पास पासवर्ड नहीं है वो बस रुक जाएंगे, बाकी लोगों को मैं, बाकी लोग जा सकते हैं, क्लासेस हुआ है। थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir. रुद्रांश तुम्हारा पासवर्ड है रुद्रांश.तिवारी एंड रुद्रांश@123। सर वैसे तो अभी सबको पता चल गया। अरे तो चेंज कर देना यार पासवर्ड। ओके सर। Manav, your account I have to create. No, I created. Just wait. I will have to check. Manvendra Singh, no? Yes, sir. I think I created. This is 100plus.prepdo.com. Your username Yes, is sir. Manav and password is Manav@123. Username is Manav, password is Manav@123. Thank you, sir. All small. Yes. Okay. Thank you.